welcomes you on the online classes of Vidya Bal Bhavan Senior Secondary School. Beta, in my last video, that is video session 31, I had discussed the basic concept of number system, that is the concept of prime number, composite number, natural numbers, whole numbers and so on. After that, I had discussed exercise 1.1, which is entirely based on the rational number. So in this video session 32, I would like to discuss the new topic, and this topic is very important because this topic is in 10th standard also. So the name of the topic is decimal representation of real numbers. What are the decimal representation of real number? So there are two types of decimal representation. One is terminating and second is non-terminating. Got it? In terminating decimal expansion, in another words, you can say that when the remainder comes out to be zero. When your remainder is 0, then you can say that the representation of real number, the decimal representation of real numbers terminates. When it terminates, when the remainder comes out to be 0. On the another way, non-terminating means when remainder never comes to 0. जब आपका रिमाइंडर 0 ही नहीं आता, in that case you can say that the decimal representation of real numbers is non-terminating, means non-terminates. Okay, this is also called non-recurring. This is also called non-recurring or non-repeating. This is also called non-recurring or non-repeating. I will explain you why I am writing this, got it? And this is also known as recurring decimal expansion or repeating. Got it? So these are the other names of terminating. Terminating means when the remainder comes out to be 0, or you can say non-recurring, or you can say non-repeating. Got it? So I said that I have told you why I have written non-recurring or non-repeating. Because suppose you have the number 5 by 8. Got it? Suppose you have number 5 by 8 and you have to divide 5 by 8. आपको 5 को 8 से divide करना है. After that you have to tell the decimal representation. आपने 5 by 8 की decimal representation बतानी कि whether this is terminating or non-terminating. So how will you do? Okay, so I am dividing 5 with 8. Okay, look at यहाँ decimal representation की बात करें तो इसका मतलब 5 नंबर छोटा है, 8 बड़ा है, तो डिवाइड होगा नहीं. तो आप किससे डिवाइड करोगे? आई एम राइटिंग 5 by 8 ओवर हियर. तो 0 पॉइंट ना, यहाँ पॉइंट लगा के 0 लगाओ. 8 5 जा 40, 8 6 जा 48. नाउ 10 में से 2 गए, 10 में से 1 गए 2, अगेन 0. 8 2 जा 16, 10 में से 6 गए 4, यहाँ 0 एड ऑन करते रहते ना. 8 5 जा 40. इधर देखो, जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसका रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया ना. So you can say that 5 by 8 is terminating decimal expansion. 5 by 8 क्या terminate कर रहा है, ठीक है. अगर इसका मतलब देखो नॉन रेकरिंग और नॉन रिपीटिंग, यहाँ रिपीट कुछ नहीं हो रहा. 0.625 सारे नंबर अलग अलग है. आफ्टर डेसिमल ऑल द नंबर्स आर डिफरेंट. तो कोई भी नंबर क्या हो रहा है? रिपीट नहीं हो रहा. दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन्ड नॉन रिपीटिंग. गॉट इट बेटा? ऑन अनदर हैंड, अगर आपके पास सपोज 10 by 3 है, यू हैव द नंबर 10 by 3. अब आप इसको डिवाइड करो बेटा. 10 को यहाँ 3 को 3 3 जा 9. 10 में से 9 का 1 पॉइंट लगाया 0.
0, 3 3 जा 9, फिर 1 गया, 3 3 जा 9, फिर 1 आ गया, 3 3 जा 9। तो अगर आपने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे 3 क्या हो रहा है, रिपीट होता जा रहा है ना, आफ्टर डेसिमल द पॉइंट इज रिपीटिंग, और आप पूरे साल लगे रहो ये चलता ही जाएगा, ये कहीं एंड नहीं होगा। जो ये डिवीजन है ना, ये कहीं पे भी एंड नहीं होगा। सो दैट मीन्स दिस इज रेकरिंग और यू कैन से रिपीटिंग। इसको आप ऐसे भी रख सकते हो 3.3 बार। हियर बार रिप्रेजेंट द नंबर इज रिपीटिंग। बार का मतलब क्या है कि ये जो नंबर है ना, ये रिपीट कर रहा है, तो आप इसको 3 पॉइंट देखो, जो नंबर रिपीट कर रहा है उसके ऊपर बार लगा दो, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन and this is an example of terminating decimal expansion. In this decimal expansion, remainder comes to be 0, or you can say here the remainder is non-zero. आप देख सकते हो 1 आ रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं है, क्योंकि आप जितना डिवाइड करते जाओगे 3 3 3 एक्सटेंड होता जाएगा। Got it? So I hope you understood the meaning, or you can say the decimal representation of real number, whether it is terminating or non-terminating. I hope you understood, beta. Let's start with the exercise 1.3, question number 1. This question number 1 is based on the decimal representation of real number. Got it? So have a look. Write the following in decimal form. Beta, you have given some expressions. You can say 1, 2, 3, 4, 5, 6. You have given 6 expressions, and you have to write the decimal expansion, or you can say the decimal form of these, ठीक है, and say what kind of decimal expansion each has. आपको मैंने 2 टाइप्स की डेसिमल एक्सपेंशंस बताई है, one is terminating and another is non-terminating. When will you say the decimal expansion terminates? आप कब कहोगे कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स करती है? When the remainders comes out to be 0. जब आपका रिमाइंडर 0 आता है, then you can say that the decimal expansion terminates, otherwise it will non-terminate. Okay, non-terminate means जब आपका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा. When your remainder comes never 0, it never comes 0, then you can say that the decimal expansion is non-terminating. So I am doing the first part. Got it? Beta, there is no need to divide because नीचे 100 है, in the denominator 100 is lying. So can you say that the answer of this is 0.36? ठीक है, 0.36 है. अब इसके बाद कोई नंबर रिपीट तो नहीं हो रहा ना, ठीक है. तो दिस इज व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन? दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. गॉट इट? व्हाई दिस इज टर्मिनेटिंग? बिकॉज द रिमाइंडर इज 0. हियर द रिमाइंडर इज 0, देन यू कैन से दैट दिस एक्सपेंशन टर्मिनेट्स. ये एक्सपेंशन कैसे करेगी? टर्मिनेट्स करेगी. नाउ लुक एट दिस एग्जांपल 1/11. 1 को अंदर रखूंगी, अब 11 से डिवाइड कर लूं. अब देखो पॉइंट लगाया, नहीं जा रहा, अगेन 0. 11 9s are 99. गॉट इट? 11 9s are 99. 10 में से 9 का 1, 9 में से 9 का 0. फिर क्या करेंगे? 0 उतारा, ठीक है, फिर नहीं जा रहा, ना जाने की 0 लगाते हैं, अगेन 0. 2 0 लगाया, 2 0 कॉन्टिन्यूएशन में उतारिए ना, तो उसकी एक 0 आप यहाँ पुट करोगे. नाउ 11 9s are 99. अगेन द सेम थिंग. 10 में से 9 का 1 0, ये तो खत्म हो गया. फिर 2 0 उतारेंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? 0. वाई एम टेकिंग 2 zeros टुगेदर? बिकॉज बेटा 1 अगर मैं रखती हूँ, 1 0 रखती हूँ, तो नहीं जा रहा ना, तो ना जाने की मैंने क्या यहाँ पुट करी? 0. सिंपल डिवीजन यू कैन से. 11 9s are 99. अगेन 1. इसका मतलब देखो 1/11 कैन बी रिटन एज 0.090909. इसका मतलब विच नंबर इज रिपीटिंग. यहाँ पे कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? देखो 09 09 09 09, ठीक है, एंड डॉट 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 का मतलब क्या होता है? ये नंबर चलता जा रहा है. क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 0 ही नहीं आ रहा. यहाँ देखो ना 9090 सेम नंबर रिपीट्स होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. गॉट इट? तो आप इसको और भी कैसे लिख सकते हैं? और 1/11 कैन बी रिटन एज 0.09 बार. अब यहाँ पे मैंने 2 नंबर्स के ऊपर बार लगाई है. इसका मतलब क्या हुआ कि 090909 रिपीट होता जाएगा. इस
decimal expansion. Why this is non-terminating? Because remainder is non-zero. You can quote the reason also beta. Because remainder is non-zero. यहाँ पे आपका जो रिमाइंडर है वो क्या है? जीरो नहीं है. रिमाइंडर जीरो नहीं है. That's why I'm saying that this decimal expansion is non-terminating. Got it? In the same way, 4 8s are 32 30. This is a mixed fraction. आपका ये mixed fraction में तो आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है? Improper में. तो 4 8s are 32 32 plus 1 33. तो it becomes 33/8. अब 33/8 को डिवाइड करेंगे. ये को 33 लिखा. 8 4s are 32. 3 में से 2 गया 1. 0 8 पॉइंट लगाया. 8 1s are 8. 10 में से 8 गए 2. ये वाली 0 यहाँ करी. 8 2s are 16. 10 में से 6 गए 4. यहाँ से ही सॉरी यहाँ 0 लगाई थी. ये वाली 0 यहाँ कॉपी करिए. 8 5s are 40. रिमाइंडर 0 आ गया. सो यू कैन से दैट 33/8 कैन बी रिटन एज 4.125. देखो एंड हो रहा है. 5 पे एंड हो रहा है. आगे कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा. रिमाइंडर भी 0 आ गया. सो दिस इज terminating decimal expansion. Why this is terminating? Because here the remainder is 0. जब remainder 0 आता है, in that case you can say that the decimal expansion terminates. So I hope you understood the decimal expansion of terminating as well as non-terminating. Got it? So fourth part, fifth part and sixth part. These 3 parts are same as it is, which I have done. So you can do on your own. And thank you so much, class. Okay, now come to the next question. Question number 2 of exercise 1.3. The question is, you know that 1/7 is equal to 0.142857 and the bar on the number 142857, this indicates that this number is repeating. ये नंबर रिपीट कर रहा है. बार का मतलब ये है. Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7? If so, how? कहते हैं क्या आप इसकी डेसिमल एक्सपेंशन बता सकते हैं without dividing? With the help of this, can you find out? Yes, I can find out. How? The solution is, as 1/7 is 0.142857 and bar is on the number 142857. ठीक है. इसका मतलब 7 के बाद फिर से आ जाएगा 142857, फिर आ जाएगा 142857, रिपीट होता जाएगा. ठीक है. सो 2/7 कैन बी रिटन एज बेटा 2 into 1/7. आप 2/7 को ऐसे लिख सकते हो ना. यू कैन राइट 2/7 एज दिस. सो दिस implies that 2 into 0.142857 bar. Got it? Now multiply करो इसको. 2 7s are 14 का 4, 2 5s are 10 और 1 11 का 1, 2 8s are 16 17, 2 2s are 4 5, 2 4s are 8 and 2 2s are 1. तो यहाँ पे बार किस पे लगेगा? 285714 पे. जहां से पॉइंट के बाद बार शुरू है ना, वहां से आप भी लगाओगे. आई होप यू अंडरस्टूड. आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा है. ठीक है. तो जब आप इसको 2/7 की डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करोगे ना, आप देखोगे आपका यही आएगा. गॉट इट? इन द सेम वे 3/7 कैन बी रिटन एज 3 into 1/7 which is 3 into 0.142857 bar. ठीक है. सो 142,857 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, फोर टू 0.428571 ये आएगा. इन द सेम वे 4/7 is 4 into 1/7 which is 4 into 0.142857 and bar. So it becomes, देखो 142,857. बेटा मैंने ये पॉइंट के बाद 0 है ना, आफ्टर डेसिमल के बाद 0 है ना यहाँ पे, तो मैंने इसको भी हटा दिया है. 4 को इससे मल्टीप्लाई करूंगी.
4 2 जा 8, 8 9 10 11 की 1, 4 4 जा 16 17, 4 1 जा 4 5. So it becomes 0.571428. Got it? ये आ गया. After this 5/7, 5 into 1/7, which is 5 into 0.142857 bar. In the same way 142857 को आपको 0 पॉइंट को किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से. तो ये आ जाएगा 0.714285 एंड बार. गॉट इट? सेम वे में जैसे यहाँ पॉइंट के बाद आफ्टर डेसिमल बार इंडिकेट्स है ना ऑन दी होल नंबर, यू हैव टू राइट एज इट इज. ठीक है, तो ये आ गया. द लास्ट नंबर इज 6/7. सो 6 into 1/7, दिस इज 6 into 0.142857 एंड बार. सो 0.14287 को मल्टीप्लाई करना है आपको 6 से. तो इट बिकम 0.857142 and 1. So you have given 1/7 is in the form of this. So you predict the decimal expansion of all these numbers. You can say 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, kind of this. Because already you know that 1/7, the decimal expansion of 1/7 is this. 1/7 की decimal expansion आपको given थी. So you have to find out the decimal expansion of 2/7, 3/7 and so on. So 2/7 can be written as 2 into 1/7. और आपने ये क्वेश्चन कर दिया. आई होप यू अंडरस्टूड बेटा. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.3. एंड बेटा दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड 100% काउंट्स इन एग्जाम. आएगा ही आएगा. ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ भी हो जाए क्वेश्चन आएगा. नॉट एग्जैक्टली दिस क्वेश्चन, मतलब नंबर्स चेंज हो सकते हैं. आप ये मत सोचना कि एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट से ही आ जाएगा. ठीक है, इट कैन बी चेंज, बट प्रोसेस जो है वो यही होगा. गॉट इट? सो एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P by Q, where P and Q are integers and Q is non-zero. बेटा यू हैव गिवन 3 एक्सप्रेशंस. 0.6 बार. आपको पता है ना बार का मतलब क्या होता है? बार मीन्स जिस भी नंबर पे बार है, दैट मीन्स दैट नंबर इज रिपीटिंग. वो नंबर रिपीट हो रहा है. ठीक है, तो आपको इसको P by Q की फॉर्म में लिखना है. P by Q मीन्स P by Q is a what? P by Q is a rational number. ठीक है, P by Q की फॉर्म में लिखना है Q नॉन जीरो. Q जीरो नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स रिमाइंडर आपका जीरो नहीं होना चाहिए. एंड P मीन्स न्यूमरेटर एंड Q मीन्स डिनोमिनेटर. मीन्स whatever the expression is given to you, you have to express this expression in the form of P by Q. This is the question. Got it? So I am doing the first part. I will do all the parts one by one. So I am taking the first one. Let x is equal to, first part beta. Look at very carefully. This is very very important question. Let x is equal to 0.6. अब बेटा यहाँ पे किस नंबर पे बार है? The bar is on the number 6. बार 6 के ऊपर है. इसका मतलब जो 6 नंबर है वो रिपीट हो रहा है. तो आप ऐसे लिख सकते हो 0.6666. मैंने सिर्फ 4 टाइम्स लिखा, ज्यादा मत लिखना. 4 टाइम्स इज एनफ. I have written 0.6 bar as let x is equal to, मैंने इसको x बोल दिया. ठीक है, and this x is equal to 0.6666 and so on. And so on means the number is repeating. Got it? Call this equation as 1. आपने इसको 1 बोला. अब ध्यान से देखना, multiplied equation 1 by 10. अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे रेज होगा, मैम व्हाई यू मल्टीप्लाइड इक्वेशन नंबर 1 by 10. ये क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा ना कि आपने इक्वेशन 1 को 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया. बेटा I have multiplied equation 1 by 10 because bar is on the number 1. जो बार है ना वो सिर्फ एक ही नंबर पे है.
अगर बार एक नंबर पे है तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, अगर बार दो नंबर्स पे है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई द गिवन एक्सप्रेशन बाय 100, आपको 100 से करना होगा। इफ बार इज ऑन द नंबर 3, अगर बार 3 नंबर्स पे है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया? मतलब एक नंबर पे बार 10, दो नंबर पे बार 100, 3 नंबर्स पे बार 1000 एंड सो ऑन इन द सेम वे। गॉट इट? सो यहाँ पे बार कितने नंबर्स पे था? सिर्फ एक ही नंबर पे बार है, तो जब एक नंबर पे बार है तो 10 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, आई एम मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 by 10, तो इट बिकम्स 10x। अच्छा देखो 0.666 को जब 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये जो पॉइंट है, ये जो डेसिमल है, ध्यान से देखना 0.6666। जब मैं इस इक्वेशन को, इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो जो बार है 10 है ना, तो एक नंबर आगे आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? 6.6666 ये बन जाएगा, ये बन जाएगा ना। ठीक है, अगर इसी नंबर को मैं 100 से करती 0.6666 को, तो जो बार है वो दो नंबर के बाद, क्योंकि 100 में दो जीरोस होती है, तो ये जो बार होता है वो दो नंबर्स के बाद शिफ्ट होता है, दो डिजिट्स के बाद, नॉट नंबर, डिजिट्स के बाद शिफ्ट होता है। ठीक है, तो 10x इज इक्वल टू, अब ये पॉइंट यहाँ पे था, डेसिमल यहाँ पे था, 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आगे आ जाएगा, तो 6.6666 एंड सो ऑन। कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, नाउ सेकेंड -1, अब सेकेंड में से 1 को माइनस कर दो, तो सेकेंड इक्वेशन क्या है? इसका LHS क्या है? 10x माइनस x इज इक्वल टू, देखो 6.6666, ये पहले आएगा, उसके बाद ये नंबर लिखोगे और यहाँ डॉट 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 लगा के रखना, 0.6666। ठीक है, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.000 पॉइंट, ये 6 आ गया, इसका मतलब 6.000, 6.00 अल्टीमेटली 6 होता है। ठीक है, और 10x में से एक x चला गया, 10x में से 1x गॉन, तो व्हाट इज लेफ्ट? 9x इज लेफ्ट, सो इट बिकम्स 9x इज इक्वल टू 6। 9x किसके इक्वल आ गया? 6 के, सो x इज इक्वल टू 6/9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2/3। x की वैल्यू क्या आ गई? 2/3। सो दिस 2/3 इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, where p and q are integers. Integers means it can be positive as well as negative. ठीक है, तो ये 2/3 आ गया। ठीक है, और q नॉन जीरो है, आप यहाँ पे देख सकते हो q क्या है? नॉन जीरो है। सो आई हैव एक्सप्रेस्ड 0.6 bar in the form of p/q, where p and q are integers and q is non-zero. One more thing बेटा, when you are multiplying 2/3 ना, जब आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही नंबर आएगा। मैं करके दिखा दूं, देखो 2 को 3 से कर लूं, अब देखो नहीं जाएगा 0.3 6 जा 18, 10 में से 1 गया 2, फिर वही 0 तारा, 3 6 जा 18, फिर 2 0 तारा है, 3 6 जा 18, देखो क्या आ रहा है? 0.666 बढ़ता जा रहा है ना, तो 0.6 बार। यहाँ से क्रॉस चेकिंग भी हो गई आपकी। क्रॉस चेक करने में बैठना एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता इन सब क्वेश्चंस में। ठीक है, क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन तो बहुत बड़ी तक जाती है ना, तो आप देख सकते हो कि आपका आंसर सही है। आई होप यू अंडरस्टूड बेटा। Understood? Exercise 1.3 question number 3 first part. Got it? Now taking second one. Second one is let x is equal to 0.47 bar. अब ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे 7 के ऊपर बार है, किसके ऊपर बार है? 7 के ऊपर, तो आप क्या करोगे? x is equal to 0.4, 4 को आपने as it is लिखना है, because bar is on the number 7, बार किसके ऊपर है? 7 के ऊपर है, तो आप 7 को रिपीट करोगे, 7 7 7 7। ठीक है, कॉल दिस इक्वेशन 1। समझ में आ गया? बार इज ऑन द नंबर 7, 4 को एज इट इज लिखा, जिस नंबर पे बार है उसको रिपीट कर देना, 4 टाइम्स लिख देना, 4 टाइम्स इज एनफ। ठीक है, आप मल्टीप्लाइड इक्वेशन 1 बाय व्हाट? 10। Why I am multiplying equation by 10? Because I told you ना कि जितने नंबर के ऊपर बार होगा उतने से ही मल्टीप्लाई करना है। इफ बार इज ऑन द नंबर 1, सिर्फ एक ही नंबर पे बार है तो 10 से, अगर 2 नंबर्स के ऊपर बार है तो 100 से, 3 नंबर्स के ऊपर बार है तो 1000 से। गॉट इट? सो इक्वेशन 1 को मैं
10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो इट बिकम्स 10x इज इक्वल टू, अब देखो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो इट बिकम्स 4.7777 एंड सो ऑन, इक्वेशन नंबर 2। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटा। ठीक है, ये जो पॉइंट है ना, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करो तो एक नंबर एक डिजिट शिफ्ट होगा। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट सेकंड माइनस 1, इक्वेशन सेकंड माइनस 1 इंप्लाइज है, क्या इंप्लाइज कर रही है, 10x माइनस x इज इक्वल टू 4.7777 सोन, इसी के नीचे लिख रही बेटा 0.4777 एंड सोन। ठीक है, अब ये देखो ये कितना बना, इट बिकम्स 9x इज इक्वल टू 0.007 में से 4 गए 3.4, तो 4.3 बना। उसके बाद जो जीरोस होते हैं हम उनको कंसीडर नहीं करते। सो बेटा इट बिकम्स 9x इज इक्वल टू 4.3। सो 9x इज इक्वल टू 4.3, बट यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। सो x विल बी 4.3 डिवाइडेड बाय 9। ये जो 9 मल्टीप्लाई हो रहा था वो डिवीजन फॉर्म में आ गया। अब यहां से मैंने क्या करना, डेसिमल को रिमूव करूंगी, तो जब डेसिमल रिमूव करूंगी तो नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 10 आ जाएगा, तो x is equal to 43/90. So you can see easily that 43/90 I have written in the form of p by q, where p and q are increases and q is non-zero. The denominator is non-zero. So I have expressed 0.47 bar as 43/90. तो आप फाइनल आंसर कैसे लिखोगे, 0.47 bar is equal to 43/90. So this is the decimal expansion. इसकी डेसिमल एक्सपेंशन ये है बेटा, 43/90 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, 0.47 बार। आई होप यू अंडरस्टूड। द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 0.001 बार। सो आई एम डूइंग द थर्ड वन। बेटा आई हैव डिस्कस्ड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 बिकॉज दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, कि आप बाद में ये मत बोलना कि मैम आपने पार्ट नहीं कराया था। आई हैव डिस्कस ईच एंड एवरी पार्ट। सो आई एम टेकिंग द थर्ड वन। लेट x इज इक्वल टू 0.001 बार। नाउ लुक एट बेटा, पॉइंट के बाद हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर। ठीक है, डिजिट्स मीन 001, यहाँ पे 3 नंबर के ऊपर बार है, दैट मीन्स 001 इज रिपीटिंग। कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 001। सो आप इसको कैसे लिख सकते हो, x इज इक्वल टू 0.001 001 001 एंड सो ऑन। कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, समझ में आ गया ना कैसे लिखना है, बिकॉज 001 इज रिपीटिंग। सो लेट x इज इक्वल टू 0.001 001 001। गॉट इट? आई हैव रिटन 3 टाइम्स, यू कैन राइट 1 मोर टाइम ऑल्सो। सो अब मैंने आपको बताया था इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ टेल मी फास्ट, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय, टेल मी फास्ट बेटा किससे करेंगे। एज आई हैव टोल्ड यू दैट द बार इज ऑन द नंबर 3 नंबर्स के ऊपर बार है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। तो आई हैव मल्टीप्लाइड दिस बाय 1000। जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000x इज इक्वल टू, अब देखो ये जो पॉइंट है 3 zeros के मतलब 3 नंबर्स के बाद शिफ्ट होगा, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। गॉट इट? ये जो पॉइंट है ना ये यहाँ पे उठ के आएगा क्योंकि 3 नंबर्स के बाद हो रहा है। तो 001.001 एंड सो ऑन। कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2। ये समझ में आएगा बेटा? तो अब बेटा यहाँ ध्यान से देखना, ये 001 1000 से मल्टीप्लाई करना था ना, तो देखो 0.001 के बाद फिर 001 था, तो जो ये पॉइंट था ना, ये डेसिमल था ना, वो यहाँ शिफ्ट हो गया आफ्टर 3 डिजिट्स। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो इट बिकम्स इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन 2 माइनस 1, इक्वेशन 2 को 1 से करेंगे तो 1000x माइनस x इज इक्वल टू, देखो 001.001 ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 थी और इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, तो 0.001 एंड सो ऑन। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखोगे, यू नो द हाउ टू सब्ट्रैक्ट 2 डेसिमल्स। 2 डेसिमल्स को आप कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, यू नो वेरी वेल। सो 0.1 ठीक है, तो इतना हो गया 999। 1000 में से 1 गया, ये
is equal to 1. बेटा 1.000 means ultimately goes to 1. ठीक है? So x is equal to 1 upon 999. So I have expressed 0.001 bar in the form of p by q. You can say 1 upon 999, where p and q are integers and q is non-zero. So x is equal to 1 upon 999 or 0.001 bar. I hope beta you understood how to express the decimal form in the form of p by q. Decimal expansion को आप p by q की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हो? You have learned in this topic. Got it? Okay. The question number 4 exercise 1.3. Beta this question number 4 of exercise 1.3 is based on question number 3. Got it? And this is very important also. So what is the question? The question says that express 0.9999. What does this mean? 0.999 and so on. That means the number, the digit 9 is repeating. इसका मतलब है जो 9 digit है वो कैसी है? Repeat हो रही है. ठीक है? You have to express this in the form of p by q, where p and q are integers and q is non-zero. So I am doing the solution. Let x is equal to 0.9999 and so on. Call this equation number 1. 0.99 means ये किस टाइप का है? x is equal to 0.9 bar. The bar is on the number 1. इसका मतलब है ना 9 के ऊपर बार है तो नंबर 9 ही रिपीट हो रहा है. डिजिट जो 9 है वो रिपीट हो रही है. So now because the bar is on the digit 1, so you have to multiply the given equation 1 by 10. Now I am multiply equation 1 by 10. 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10x is equal to, अब देखो ये जो डेसिमल है 1 डिजिट के बाद आएगा तो it becomes 9.999 and so on. Call this equation 2. Now second minus 1 gives what? 10x minus x is equal to 9.999 and so on and 0.999 and so on. After subtraction 0.9. So 9x, 10x minus x gives 9x is equal to 9. So you can say that 9x is equal to 9. This implies that x is equal to 9 by 9. This is 1. अब यहाँ पे देखो बेटा 0.9999 ultimately goes to 1. ये राउंड ऑफ है ना? ये राउंड ऑफ है. So 1 is the rational number, you can say. 1 can be written in the form of p by q. देखो इसको p by q की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 1 by 1 and q is non-zero. ये p by q की फॉर्म में है and q is non-zero. q 0 नहीं है. So in today's video session 32, what I have discussed, मैं summarize कर देती हूँ. What I have discussed the decimal representation of real numbers. Got it? तो real number, you know, the combination of rational as well as irrational number is known as real numbers. तो जो आपने decimal expansion किया, there are two types of decimal representation of real number. One is terminating and another is non-terminating. Terminating means when remainder comes out to be 0 and non-terminating means when remainder never comes to be 0. जब आपका remainder 0 नहीं आता तब वो non-terminating होती है और जब आपका रिमाइंडर 0 आता है तो वो टर्मिनेटिंग होती है. ठीक है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, द अदर नेम ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इज व्हाट? नाउ टेल मी फास्ट. इट इज नॉन रिपीटिंग. नॉन रिपीटिंग मीन्स कि रिपीट नहीं कर रहा. क्यों रिपीट नहीं कर रहा? क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है इसलिए वो रिपीट नहीं कर रहा. नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब रिपीटिंग, रिपीट करते हैं. वहां डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट करती है. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. व्हाई? बिकॉज 9 is repeating, the digit 9 is repeating, so this is non terminating. I hope you understood the concept of terminating as well as non terminating. Beta at last I am saying that कि whatever your doubts, बेटा please watch the video very carefully. जो भी आपके डाउट है, whatever your doubts,
यू कैन आस्क मी थ्रू पोर्टल। आप पोर्टल पे जाके वहां पे अपनी क्वेरीज को मेंशन कर सकते हो, so that I could solve your queries one by one, ठीक है। तो this is my request to each and every student that please mention your queries। जब तक आप अपनी queries को mention नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा you guys are studying, got it? So take care of yourself and have a good day।